Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 9th, natural vegetation is going on. In this chapter, today we discuss here deforestation and need for conservation of forest. What is the deforestation and why we save the forest? So we discuss here all the point. In this chapter, we already discussed in the last videos, that is five type of vegetation in our country: the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical desert, littoral forest, and mountain vegetation. We all discussed in these are all the point. So now today we start a new topic of this chapter, that is the deforestation and need for conservation of forest. Okay, so first of all, what is the deforestation? So clearing of forest and other vegetation for agriculture, commercial, housing, means when we cut down the tree for any purpose, जब किसी भी पर्पस के लिए हम पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, जब हम फॉरेस्ट या अदर वेजिटेशन को कट डाउन करें फॉर द एग्रीकल्चर, कमर्शियल पर्पस या हाउसिंग, किसी भी चीज के लिए हम पेड़ों को जब काट रहे हैं, दैट कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ओके, एंड व्हाई वी नीड टू सेव द forest? So to all, forests are one of the most important component of ecological balance. जो हमारा इन्वायरमेंट एक बैलेंस जो बना हुआ है नेचर और ह्यूमन के बीच में, ड्यू टू द वेजिटेशन ही पॉसिबल है. ओके, सो हमारे जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब क्यों फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, तो हम डिस्कस वही पॉइंट यहाँ पर, मेन 3 पॉइंट है. A forest is a complex ecosystem which is predominantly composed of tree, shrubs, and is usually a closed canopy. So here, new term is canopy. What is the canopy? And before that, in the forest areas में different type of vegetation we find out, different type of tree, shrubs, bushes. So different type of things we find out in the forest areas. So canopy, just see here, this is a forest area, and when your tree are close to each other and cover the upper part like this portion is called canopy. ओके, क्योंकि ये जो क्लोज ट्री होते हैं तो आपकी जो सनलाइट होती है तो ये कैनोपी उसको कवर कर लेती है और नीचे नहीं आने देती है. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कैनोपी. ओके, upper portion of the tree, upper part of the trees, okay, is called canopy. So first point, कि means a forest is a complex ecosystem which is predominantly composed of, किस चीज से बना हुआ है जो पूरा फॉरेस्ट? shrubs, different type of trees, bushes, different type of vegetation से. Okay, and usually a close canopy means tree close to each other, and forests are storehouse of a large variety of life. Second point, in forest so many types of lives are found there, such as plants, mammals, birds, insect, and reptiles. Like this, different type of varieties of life are found in forest. Okay, so forest are storehouse of a large variety of life forms such as plants, mammals, birds, insect, and reptiles. Okay, and also the forest have abundant microorganism and fungi which do the important work of decomposing dead organic matter, thereby enriching the soil. Okay,
कि मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज करते हैं लीव्स को या एनिमल्स की डेड बॉडीज को। ओके, और जब डिकम्पोज होकर सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये लिखा है आल्सो द फॉरेस्ट हैव अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगीज। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगीज होते हैं विच डू द इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये डिकम्पोज हो रहा है एंड आफ्टर मिक्स विद द सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, clear? So we discuss here one by one all the point why we save the forest. So first point, prevention and control of soil erosion, means जो forest है आपके वो soil erosion को रोकते हैं। और how we discuss here all point, forest play a significant role in the prevention and control of soil erosion by water and wind. You know when water flow करता है और विंड ब्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारे लूज पार्टिकल्स को वो कैरी करके चलते हैं और वहां से रिमूव कर देते हैं। ड्यू टू दैट उस पर्टिकुलर एरिया की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो ट्री का काम क्या होता है, जस्ट बाइंड अप द सॉइल। नेचुरल बात है, जब सॉइल को ये रूट्स जो होती है वो बाइंड अप करके रखेगी तो लूज नहीं होगी और इजिली वाटर के साथ फ्लो नहीं करेगी। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स कि आपकी जब विंड ब्लो करती है तो बीच में जब ट्री ऑब्स्टेकल हो जाए तो उसकी स्पीड को भी स्लो करते हैं। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, सो फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन बाय द वाटर एंड विंड। डिफॉरेस्टेशन मींस कट डाउन द ट्री, lead to increase runoff rainwater and diminished its diminished seepage and storage in soil. So what is the meaning of diminished? Diminished means less, come. Okay, so deforestation lead to increase the runoff, means if we cut down the tree, suppose ये है ट्री, तो ये बाइंड अप करके रखेगा, वाटर की स्पीड को रिड्यूस करेगा और वाटर को मीन्स वो ऑब्जर्व भी करेगा। लेकिन इफ ट्री को हम कट डाउन कर देंगे और हमारा प्लेन एरिया हो जाएगा तो हियर जो रेनफॉल वाटर होगी तो वो स्पीड से फास्टली फ्लो करेगा। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन लीड टू इंक्रीज रन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स डिमिनाइज्ड सीपेज। वाटर जो होता है सीपेज मीन्स रिस्क के अर्थ के नीचे जाना। ओके, सो इफ वी कट डाउन द ट्री सो सीपेज भी लेस होगी एंड स्टोरेज इन सॉइल। ओके, तो पानी की जो सीपेज कम होगी, स्टोरेज कम होगी इन सॉइल में, वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ऑब्जर्व नहीं होगा बाय द सॉइल। अगर प्लांट होगा तो वाटर को ऑब्जर्व करेगा, सीपेज ज़्यादा होगी। लेकिन ये प्लांट नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, तो वो वाटर फास्टली फ्लो करेगा, इरोड करेगा मटीरियल को। ओके, एंड लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देगा। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल suffer, the runoff increase and loosen the soil which is carried away to other region, means जब plants नहीं होंगे तो water fast flow करेगा और it carry the loose particles of soil और उसको वहां से remove कर देगा। So the fertility of soil is lost and it become barren and unproductive land। ओके, मीन्स जब आपका लैंड जो है जब यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा तो वो अनप्रोडक्टिव एंड बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस योर फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। इफ ट्रीज देयर तो सीपेज भी होगी, स्टोरेज ऑफ वाटर भी होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन इफ ट्री हम कट डाउन कर देंगे एंड आफ्टर दैट सीपेज और स्टोरेज ऑफ वाटर कम होगी, आपका मटेरियल इजिली लूज हो जाएगा और वहां से रिमूव हो जाएगा बाय द वाटर, बाय द विंड एंड योर लैंड कन्वर्ट इनटू द बैरन लैंड। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाई वी सेव द ट्री, फ्लड कंट्रोल। तो सेकंड पॉइंट है जो ट्री हमारे वो फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं। रूट्स ऑफ ट्री absorb much of the rain water and use it slowly during the dry season, कि means during the rainy season
आपकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, टू मच क्वांटिटी में वाटर को ऑब्जर्व कर रही है, ओके। एंड आफ्टर दैट उस वाटर को यूज करिए इन ड्राई सीजन में। सो ट्री आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड। वाटर के फ्लो में रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है बाय द वाटर साइकिल, एंड इट आल्सो कंट्रोल द फ्लड बिकॉज ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। टू डू दैट आपके अर्थ सरफेस पे वाटर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, ओके। सो इट आल्सो हेल्पफुल फॉर द फ्लड कंट्रोल। सो चेक ऑन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। चेक मीन्स हियर स्टॉप। ऑन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, हमारा जो डेजर्ट रीजन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब स्प्रेड कैसे हो रहा है? जस्ट हियर दिस योर सैंड पार्ट, और यू नो टू कि सैंड में टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, और इन दैट एरिया वेयर प्रेशर इज लो विंड फास्टली ब्लो करती है, ओके। सो विंड इतनी फास्टली ब्लो करती है कि वो यहाँ से लूज पार्टिकल्स को कैरी करके सराउंडिंग एरिया में जाके डिपोजिट कर देती है। तो ड्यू टू देयर हमारे डेजर्ट जो रीजन है वो डे बाय डे स्प्रेड हो रहे हैं, जो प्लांट भी इसको स्प्रेड होने से बचाते हैं, ओके। तो चेक ऑन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। सो सैंड पार्टिकल्स आर ब्लोन away by the strong wind in the desert and are carried over long distance, thus resulting in the spread of desert। कि मीन्स आपकी जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो इट कैरी द लूज पार्टिकल्स एंड डिपोज द सराउंडिंग एरियाज, वहां जाके आगे यहाँ से पिकअप करेगी, आगे डिपोजिट यहाँ से पिकअप करेगी, आगे जाके डिपोजिट कर देगी। तो ड्यू टू दैट आपका जो डेजर्ट रीजन है वो ऑलवेज स्प्रेड हो रहा है। सो द रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट्स बाइंड द सैंड पार्टिकल्स। तो अब ट्री का काम क्या है? जस्ट ट्री रूट्स जस्ट बाइंड ऑफ द सॉइल, उसको लूज नहीं करने देती बेटा, और आफ्टर दैट डू नॉट परमिट देयर इजी ट्रांसपोर्टेशन बाय द विंड। तो मीन्स जब आपकी जो रूट्स हैं वो बाइंड अप करके रखेंगी सॉइल को, ये सैंड को, तो वो इजिली वहां से रिमूव नहीं हो पाएगा, ओके। सो चेक ऑन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, ओके, इज अ थर्ड मेन पॉइंट why we save the forest. So fourth point, increase of soil fertility. The fallen leaves of tree add humus to soil after their decomposition. You know to all humus होता है ये आपकी जो प्लांट की लीव्स जो होती हैं जो वो डिकम्पोज होती हैं और मिक्स विद द सॉइल, तो उसमें वो मॉइस्चर की क्वांटिटी को बनाए रहती है इन द सॉइल, और ड्यू टू दैट आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ओके। इफ योर प्लांट अगर हम कट डाउन कर देंगे तो लीव्स मिक्स नहीं होगी और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ओके। सो सॉइल की फर्टिलिटी जो है ये आल्सो इंक्रीज होती है व्हेन योर लीव्स ऑफ ट्री डिकम्पोज इन द सॉइल, ओके। तो ड्यू टू दैट आपकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेव द फॉरेस्ट। And effect on climate. So forests play an important role in regulating the earth temperature and weather pattern by the storing large quantity of carbon and water. You know to all कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करते हैं, ओके। और ड्यू टू दैट हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वेदर और क्लाइमेट को वी कैन से कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें उसको रेगुलेटिंग करने में, टेम्परेचर को चेंजेस लाने में और वेदर को कंटिन्यू रखने में, ओके। सो इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस रेगुलेटरी because a function has performed इफेक्ट ऑन बोथ लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। मीन्स आपके जो ट्री है इसका जो इम्पैक्ट है लोकल हमारे सराउंडिंग भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और ग्लोबली पूरे होल वर्ल्ड पर भी, क्लाइमेट भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। इफ वी टॉक अबाउट लोकल, so you know to all locally tree provide shade which in turn lower summer temperature and prevent the soil from the drying out। कि मीन्स इफ लोकल में देखा जाए तो आपकी ट्री की जो शेडो है ये शेड प्रोवाइड करती है। सेकंड, आपकी डायरेक्ट सनलाइट यहाँ नीचे नहीं पहुंच पाएगी और आपकी जो सॉइल है वो ड्राई होने से बच जाएगी, ठीक है। सो दे रिड्यूस द हीट लॉस from the ground in winter and reduce storm damage by the providing shelter from wind। जब विंड फास्ट करते हैं उसकी स्पीड को भी ये स्लो करते हैं, ओके। सो इट इज अ लोकली इफेक्ट ऑफ ट्री, ओके।
एंड ग्लोबली भी टॉक अबाउट, ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? So forests regulate the global carbon cycle, having a profound effect on the climate. You know तो कि आपके जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इफ योर प्लांट कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और यू नो तो कि आपको जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ओके, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी उतना टेम्परेचर का हाई होता जाएगा, बिकॉज आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सर की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करती है, और ड्यू टू दैट आपका टेम्परेचर हाई होता है। ओके, सो ग्लोबली भी इम्पैक्ट कर रही है और लोकली भी इम्पैक्ट कर रहा है आपका जो प्लांट होते हैं। तो दैट्स व्हाई कि प्लांट आल्सो वी नीड टू सेव। ओके, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट लोकली एंड एज वेल एज ग्लोबली क्लाइमेट। ओके, सो बेटर रोल इन कंट्री इकोनॉमी। अब कंट्री के इकोनॉमी में भी आपके प्लांट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउ वी डिस्कस हियर। So forests are major natural resource of an economy. Grazing activity in the forest provide occupation to the millions of peoples. Grazing means जो animals को grazing करने को पाल रहे हैं, वो घास ग्रास वगैरह दे रहे हैं, so उसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स का एक मेन ऑक्यूपेशन है, वो काम कर रहे हैं और उनको इनकम मिल रही है। ओके, और ये ग्रेजिंग तभी कर पाए जब हमारे पास फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है। ओके, एंड फायरवुड एंड चारकोल इज अ चीप सोर्स ऑफ फ्यूल इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया की जो मेन सोर्स है फ्यूल का वो आपका है फायरवुड और चारकोल, और दोनों में गेट कर रहे हैं फ्रॉम द वेजिटेशन, ये प्लांट से। ओके, एंड टिम्बर इज अ मेजर प्रोड्यूस एंड इज यूज्ड for furniture, making the door, window and even house. Timber means ये good quality of wood होती है जो यूज होती है घर के मटेरियल को बनाने के लिए। ओके, सो these all the material we get from the forest. Okay, and railway use sleeper for new construction. जो कि railway sleepers होते हैं also made of wood. Okay, and for maintenance of existing railway line, जो already line है उनको भी maintain करने के लिए help करते हैं आपके ट्री। सो इंडिया जो ट्री है नेम टीक इज एन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू इट्स टिम्बर। टिम्बर मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ वुड, दोज आर यूज इन योर हाउस मेकिंग, विंडो या अदर प्रोडक्ट। ओके, एंड फर्नीचर मेकिंग क्वालिटी। सो टी की डिमांड बहुत ज्यादा है इन द यूरोपियन कंट्रीज, तो इंडिया से यहाँ से सप्लाई की जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज को। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं योर प्लांट, so that's why we need to save the forest. So here discuss 6 point. First we discuss what is the deforestation, after that need for conservation of forest. Okay, and first point here we discuss prevention and control of soil erosion, second flood control, third check on spread of desert, increase the of soil fertility, and fifth one effect on climate, and last one better role in the country economy. Okay, this is your topic to discuss here, and further part we discuss next video. Okay, thank you.